ایڈٹ نہیں ہوئی؟ آباد میں تھانہ بھون کی حدود میں نامعلوم ملزمان کی پولیس موبائل وین پر فائرنگ، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ حسن باغ کے قریب نامعلوم ملزمان نے پولیس موبائل وین پر فائرنگ کر دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق زخمی اہلکار طبی امداد کے لیے شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ملازمین میں کانسٹیبل الطاف اور لطیف شامل ہیں۔ تھانہ صدر قصور کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ بین الزائد کرکٹ گینگ کا سرغنہ زخمی حالت میں گرفتار۔ زخمی ڈاکو کی شناخت انصار عرف بوٹا کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ پولیس کے مطابق زخمی ڈاکو ڈکیتی اور راہزنی کے درجن ستائش سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ گینگ نے قصور اور اس کے گردنواح میں سنگین وارداتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے لوٹا مال مسروقہ اور بالا تولے طلائی زیورات بھی برآمد کر لیے گئے۔ ساہیوال تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 4 منشیات فروش گرفتار کر کے 7 کلو گرام چرس جبکہ 7 کلو افیون پکڑ لی گئی۔ تھانہ سٹی پولیس ٹیم نے ایس ایچ او ذیشان اکرم کی سربراہی میں کامیاب کارروائی کر کے 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق پکڑی گئی منشیات ملزمان سے تھیلوں میں چھپا رکھی تھی۔ سیالکوٹ میں حالیہ مونسون سیزن اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے لیے ریسکیو کی طرف سے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ چپڑال، ہیڈ مرالہ، سید پور بجوال، تحصیل اسلمبڑیال میں، اس کے علاوہ شہباز پور پر رندیر بھاگنیا، تحصیل قصور میں نالا ڈیگ اور شہور سمیت تمام سیکٹرز میں سیلابی صورتحال سے نودازماں ہونے والے آلات اور کشتیاں بھیج دی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کے مطابق ریسکیو ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں، جن میں اسٹاف کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بر وقت نمٹنے کے لیے ہم وقت موجود رہے گا۔ اور ہارون آباد میں ناجائز منافع خوروں اور گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں، کم پیمانے پر پیٹرول پمپس مالکان جبکہ روٹی کے وزن میں کمی اور مقررہ ریٹ پر روٹی نہ دینے پر ہوٹل مالکان کو بھاری جرمانے۔ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود کی طرف سے کی گئی۔ پیٹرول پمپس مالکان کو مجموعی طور پر 1.5 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ میں جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں تھانہ بھون کی حدود میں نامعلوم ملزمان کے پولیس موبائل وین پر فائرنگ کا واقعہ، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ حسن باغ کے قریب نامعلوم ملزمان نے پولیس موبائل وین پر فائرنگ کر دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔
जिनको तिबी इमदाद के लिए शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और तमाम इलाके का घेराव और सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए कार्रवाई जारी रखी। जख्मी मुलाजमीन में कांस्टेबल अल्ताफ और लतीफ शामिल हैं। थाना सदर कसूर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। बैनुल असलाह डकैत गैंग का सरगना जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू की शिनाख्त अंसार उर्फ बूटा के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू डकैती और राहसने की दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। गैंग ने कसूर और इसके गिरदोनवाक में संगीन वारदातों का बाजार गर्म कर रखा था। डाकू पतवा कला के रिहायशी आशिक नामी शहरी के घर से डकैती के बाद फरार हो रहे थे। नाके के दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुल्जमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में गैंग का सरगना जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि बाकी साथी फरार होने में कामयाब रहे। मुल्जमान के कब्जे से लूटा माल मसरूका और 12 तोले तलाई जेवरात भी बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि थाना सदर कसूर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला बेनजलाई डकैत गैंग का सरगना जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी डाकू की शिनाख्त अंसार उर्फ बूटा के नाम से हुई है, जबकि पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू डकैती और राहजनी के दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। गैंग ने कसूर और इसके गिरदोनवाक में संगीन वारदातों का बाजार गर्म कर रखा था। डाकू पतवा कला के रिहायशी आशिक नामी शहरी के घर से डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गैंग का सरगना जख्मी हालत में पकड़ा गया, जबकि बाकी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कराची से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची के इलाके महमूदाबाद में दिन दहाड़े असलहा की नुमाइश, मुल्जमान की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। फायरिंग की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा बलोच। कराची के इलाके महमूदाबाद में असले की सरेआम नुमाइश करके शदीद फायरिंग की गई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। महमूदाबाद के इलाके आजम बस्ती अल हिलाल चौक गली नंबर 9 में असले की सरेआम नुमाइश करते हुए शदीद फायरिंग की गई, जिसकी वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में कुछ अफराद को देखा जा सकता है जो सरेआम असले की नुमाइश करते हुए शदीद फायरिंग कर रहे हैं। शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह गए। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। खबर शामिल करें कंथकोट के इलाके गड़ी तीगू में, जहां मुसलसल 3 रोज से जारी डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कामयाब हो गया। अगवा होने वाली 3 टिकटॉकर लड़कियां बाजियाब करा ली गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 1.5 माह कबल धोखे से बुलाई जाने वाली टिकटॉकर स्टार 3 लड़कियां पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब हो गई। बाजियाब होने वाली तीनों लड़कियां तोगयानी गैंग के पास थी। एसएसपी इरफान समू के मुताबिक पुलिस ने आज सुबह से ही तोगयानी गैंग का घेरा तंग किया हुआ था। पुलिस की भारी नफरी अभी भी कच्चे के इलाके में मौजूद है। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी और बाकी मगबियों की बाजियाबी के लिए अभी भी कच्चे के इलाके गड़ी तेगों में ऑपरेशन टहल जारी है। साहिवाल थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बताएं कि साहिवाल थाना सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 7 किलोग्राम चरस जबकि 7 किलो फ्यून पकड़ ली। थाना सिटी पुलिस टीम ने एसएचओ जिशान अकरम की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करके 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान को जब रोका गया तो उन्होंने नाके से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने ताकुब करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई मनशियात मुल्जिमान ने थैलों में छुपा रखी थी। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि साहिवाल थाना सिटी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 7 किलोग्राम चरस जबकि 7 किलो फ्यून पकड़ ली गई। थाना सिटी पुलिस टीम ने एसएचओ जिशान अकरम की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करके 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। अब रुख करते हैं कनकोट का, जहां पर आईबीए टेस्ट पास उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہال کے سامنے. جیسا کہ 2021 میں آئی بی اے میں ٹیسٹ کے پاس کیے گئے جو 40 سے پلس مارکوں پاس کرنے والے کو ابھی تک آرڈر نہ مل سکے، وہ اسی کی جانب سے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مزید ہمارے ساتھ احتجاجی مظاہرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی سر، آپ کیا کہنا ہے اور آپ سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ سر، ہم سراپا احتجاج اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی آرڈر وغیرہ نہیں ملے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہماری 2021 میں ٹیسٹ ہوئی تھی اور ابھی 2 سال ہمارے گزر گئے ہیں اور ہمارے ہاں ابھی تک کوئی سیکنڈ فیز جے ایس ٹی اور تھرڈ فیز پی ایس ٹی اسٹارٹ نہیں ہوا، جبکہ ان کے پاس ویکنسیز اتنی ہیں کہ ہم 2021 والے پہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور ایک ٹیسٹ لی گئی تھی جو ابھی انہوں نے فیز وائز اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا. ہمارے ڈسٹرکٹ میں جے ایس ٹی کا فقط ایک ہی فیز اسٹارٹ کیا گیا ہے جس میں ان کو ریکمنڈیشن کی گئی ہے اور اس کو آفر آرڈر جاری کیے گئے ہیں، لیکن سیکنڈ فیز کا کوئی کام ابھی تک اسٹارٹ ہی نہیں ہوا. اور جو پی ایس ٹی میں 2 فیز چل چکے ہیں اور تھرڈ فیز پہ کوئی کام نہیں چل رہا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ابھی تک ہم ریکمنڈیڈ جو لڑکے ہیں وہ ابھی تک بے روزگار بیٹھے ہیں اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ 2023 موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ڈی او پرائمری سیکنڈری آفس کے باہر یہ سارے دوست موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے 2021 میں ٹیسٹ پاس کیا تھا، اس وقت جو ابھی انہوں نے فرسٹ فیز اسٹارٹ کیا تھا پی ایس ٹی سیکنڈ فیز، لیکن ابھی جو تھرڈ فیز ہے اس کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے جو ہے نا تھرڈ فیز پی ایس ٹی تالکا تنگوانی کا ابھی تک اسٹارٹ نہیں کیا ہے. اس 2021 والوں کو رائٹ ملنا چاہیے اور جب کوئی سیٹ بچ جاتی ہے تو پھر 2023 والوں کو جو ہے نا ایڈجسٹ کی جائے. جی، آپ نے مظاہرین کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہم 2021 میں ٹیسٹ پاس کیے ان کو آرڈر ابھی تک نہیں دیے گئے، لیکن جو 2023 میں جنہوں نے پاس کیا ان کو آرڈر دیے جا رہے ہیں. اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کی ہے خدا را کہ ہمیں آرڈر دیے جائیں. آگے بڑھتے ہوئے رخ کریں قصور کا، جہاں حالیہ ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا دی. کسانوں کی فصلوں میں 5 سے 6 فٹ تک پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ قصور میاں کاشف سے. جی کاشف، بتائیے گا. جی شکریہ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ ہونے والی بارشوں نے جو ہے وہ تباہی مچا کے رکھ دی ہے. جہاں پر قصور شہر کی گلیاں، مین شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہی ہیں، تو وہیں پر بات کی جائے تو دیہاتوں میں کسانوں کی زمینوں میں 5 سے 6 فٹ تک جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے. کسانوں کی جو ہے وہ مکئی کی فصل، اس کے ساتھ ساتھ مونجی کی فصل، اور یہاں پر میرے رقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اروی کی فصل ہے جو کہ مکمل طور پر تیار ہے اور تباہی کے دانے پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اروی کی فصل میں بھی 3-3 4-4 فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے. یہاں پر میرے ساتھ کچھ کسان حضرات موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. سر کیا کہیں گے، کتنا نقصان ہوا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر جی پر بھی نقصان ہو گیا. 3 پنڈਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ. 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ. اس سے کون کون سی جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں بارش سے؟ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ, ਝੋਨਾ, ਮਕਈ 3 ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ. تو کیا کہیں گے حکومت سے، حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدامات کریں؟ حکومت ਅੱਗੇ ਪਰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ. ਯਾਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ جو کچھ ਹੈਗਾ ਪਿਆ نقصان ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਗੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ نہیں. یہاں پر جی آپ نے کسانوں کی بات سنی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کو ریلیف دے. ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، کھادیں مہنگی ہیں، بجلی مہنگی ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کمیونٹی پولیسنگ کراچی اور سندھ بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے باہمی اشتراک سے منعقدہ شجرکاری مہم گرین سنڈے گرین میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مزید تفصیلات کے دیکھیے نور امین کی یہ رپورٹ. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کمیونٹی پولیسنگ کراچی اور سندھ بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے باہمی اشتراک سے منعقدہ شجرکاری مہم گرین سنڈے گرین کراچی میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. شجرکاری مہم میں ایس ایس پی ایسٹ سی پی کے چیف مراد سونی، سندھ بوائز اسکاؤٹس کے چیف پیٹرن محمد صدیق میمن، ندیم شیخ، ایڈوکیٹ وہاب باری، عرفان ابو بکر، یونس رنگیلا، حماد بن مسعود، معیز خان اور دیگر نمائندگان اور سینئر پولیس افسران شامل تھے.
एडिशनल आईजी कराची ने सिंध स्काउट्स क्लब के पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, जहां मजीद 800 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। पुलिस चीफ ने मुहर्रमुल हराम और दीगर तकरीबात में स्काउट्स की खिदमत और मुख्तलिफ तकारीब में दौरान खिदमत शहीद होने वाले स्काउट्स को भी खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्तिताम पर पुलिस चीफ ने चीफ पेट्रन मोहम्मद सिद्दीक को शील्ड पेश की, जबकि पुलिस चीफ को भी एजाजी शील्ड और ताइब पेश किए गए। कैमरा टीम के साथ नूरमीन मसूद, कोए नूर, कराची। तो वहीं दूसरी जानिब जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मौलाना सिराजुल हक ने पीडीएम हुकूमत का साथ न देने की वजह बता दी। डेरा इस्माइल खान के एक निजी मैरिज हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान उन्होंने मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान के ज़ेर एहतमाम शहर के एक निजी मैरिज हॉल में एक वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। इस मुनक्कदा तकरीब का मकसद आने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां और जमात इस्लामी डेरा को मज़ीद फ़ाल बनाना था। वर्कर कन्वेंशन में जमात इस्लामी पाकिस्तान के सूबाई अहदेदारान, ज़िलाई काबीना, शहर और मुज़ाफ़ात के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। पार्टी कायद मौलाना सिराजुल हक ने इस कन्वेंशन में खसूसी शिरकत करके अपने खिताब में पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अल्लाह का हुक्म यही है, मेरे साथ जंग न करो। ये यहूदियों का तरीका है सूदी निज़ाम, लेकिन इस पीडीएम की हुकूमत के आने के बाद वो जो शरई सूद है 13% से 17% और 17 से 21% और अब दुनिया में सबसे ज़्यादा शरई सूद पाकिस्तान में है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हुकूमत सूद निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देती है, जो हुकूमत अल्लाह के साथ बजंग है, उस हुकूमत का साथ देना, उस हुकूमत के साथ चलना, उस हुकूमत को सपोर्ट करना, ये अल्लाह ताला के साथ जंग है या अल्लाह ताला के साथ दोस्ती है। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के हाथों में है, ये उसका इमाम है, ये उसका सरबराह है। हमारा ये ख्याल था कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस हुकूमत का सरबराह हो वो हुकूमत सूद पर पाबंदी लगाएगी। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी डेरा की जदोजहद और वर्कर की शबाना रोज मेहनत से पार्टी मकबूलियत में खबर शामिल करें सियालकोट से, जहां हालिया मानसून सीजन और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू की तरफ से हाई अलर्ट जारी है। चिपराड़, हेडमराला, सैदपुर बचवा, तहसील संबड़ियाल में शहबाजपुर पुल, रंधीर भागड़ियां, तहसील पसरूर में नाला डीग और चहूर समेत तमाम सेक्टर्स में सैलाबी सूरत हाल से निबर्द आजमा होने वाले अलातो कश्तियां भेज दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल के मुताबिक रेस्क्यू रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं, जिनमें स्टाफ किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए हम्मा वक्त मौजूद होगा। दूसरी तरफ रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का दौरा किया और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला ने तैयारियों के हवाले से इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तमाम स्टाफ को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। टंडवाला यार में शहीद इंजीनियर हारिस खानजादा की अवामी खिदमत के एतराफ में खानजादा राजपूत एंड वसीला फाउंडेशन की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस का इन्नेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अवासी। शहीद इंजीनियर हारिस खानजादा का ताल्लुक एक मजदूर घराने से था, जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन के साथ साथ अच्छे इखलाक की बदौलत लोगों के दिलों पर राज किया। गुज़िश्ता साल शहीद इंजीनियर हारिस खानजादा टंडो आदम के मकाम पर एक अलमनाक ट्रेन हादसे का शिकार हो गए, जो मौके पर ही वफात पा गए। शहीद ने अपने सौगवारों में बीवी समेत एक बच्चे को छोड़ा है। शहीद इंजीनियर हारिस खानजादा ने अपनी ज़ाती हैसियत के मुताबिक कई गरीब फैमिलीज़ की किफ़ालत की और जिन फैमिलीज़ की बेटियों की शादी जैस की वजह से रुकी हुई थी, उनकी शादी करवाई। हारिस खानजादा ने छोटी सी उम्र में वो मकाम हासिल किया जिसे लोग हासिल करने के लिए सिर्फ सोच सकते हैं। इसी हवाले से खानजादा राजपूत वेलफेयर एंड वसीला फाउंडेशन की जानिब से इंजीनियर हारिस खानजादा की फलाई, समाजी और रिफाई खिदमात पर खराज अकीदत पेश करने के लिए जेम खाना टंडोलियार में ताज़ती रेफरेंस का इनेकाद किया गया।
جس میں شہر کے سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ شہائے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خانزادہ راجپوت ویلفیئر اینڈ وسیلہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین راشد خانزادہ نے مرحوم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حارث میرا چھوٹے بھائی سے بڑھ کر تھا۔ اس نوجوان نے اپنی زندگی میں صرف تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ جب اس کی زندگیوں میں خوشی کے دن قریب آئے تو وہ ہمیں اکیلا چھوڑ گیا۔ نیکی کا کام کر گیا تو اللہ تعالیٰ کا کام کر گیا، تو انشاءاللہ اس کا کام اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے اور کرواتے رہیں گے اور وسیلہ بناتے رہیں گے اس کی فیملی کے لیے۔ تقریب سے حارث خانزادہ کے والد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب اس نے پہلی غلطی کی پڑھائی کے معاملے میں، پہلی کلاس میں جب داخلہ ہوا تو اس نے اپنا بستے کو ایسے پھینکا۔ جب بستے کو اس نے ایسے پھینکا تو مجھے بہت برا لگا، کیونکہ میرے غریب آدمی تھا، محنت کرتا تھا، میری یہی کوشش تھی کہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں۔ تعزیتی ریفرنس میں آنے والے مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہید حارث خانزادہ کی بااصل زندگی ساری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ حارث کی اگر میرے پاس زندگی میں 100 کالیں آئی ہوں گی، میں بلا مبالغہ آپ کو کہتا ہوں کہ 95 کالیں کسی کی مدد کے حوالے سے آئیں۔ اس بچے کی شادی ہے، اس بچے کے پیپر ہیں، اس بچے کو یہ کروا کے دینا، اس کو یہ کروا کے دینا۔ تقریب کے آخر میں تعزیتی ریفرنس میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ رپورٹ آپ نے چاہنی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عامر محمود نے شہر کے مختلف پیٹرول پمپس کے پیمانے اور مختلف ہوٹلز پر روٹی کے وزن اور مقرر کردہ ریٹ کو چیک کیا۔ دوران چیکنگ کم پیمانوں والے پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ دوسری جانب ریٹ کی پاسداری نہ کرنے والے ہوٹلز مالکان کو بھی جرمانے کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے زائد ریٹ کی وصولی اور کم پیمانے پر مختلف پیٹرول پمپس مالکان کو 1,47,000 روپے سے زائد کے جرمانے کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوروں اور ناپ تول میں کمی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عامر محمود نے شہر کے مختلف پیٹرول پمپس کے پیمانے اور مختلف ہوٹلز پر روٹی کی وزن اور مقرر کردہ ریٹ کو چیک کیا۔ دوران چیکنگ کم پیمانوں والے پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ دوسری جانب ریٹ کی پاسداری نہ کرنے والے ہوٹلز مالکان کو بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے زائد ریٹ کی وصولی اور کم پیمانے پر مختلف پیٹرول پمپس مالکان کو 1,47,000 روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوروں اور ناپ تول میں کمی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس چھوٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ میانی میں محرم الحرام کے سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ میانی رانا عاصم کے زیر اہتمام امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دنوں میں جلوسوں، مجالس کی سیکیورٹی اور مذہبی ہم آہنگی پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ایس ایچ او رانا عاصم نے کہا کہ مجالس اور جلوسوں کے مقررہ ٹائم کی پابندی کی جائے تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی مذہبی فرقہ واریت تقاریر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اجلاس میں صحافیوں اور شہر کے مختلف مسالک کے علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ احمد پور شرکیہ میں باثر قبضہ مافیا کا محنت کش کے گھر پر دھاوا، کلہاڑی اور ڈنڈوں کے وار سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں صادق اور جمیل شامل ہے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارٹی میں تشکیل دے دی گئی۔ زخمی ہونے والے دونوں افراد کی حالت اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ احمد پور شرکیہ میں بااثر قبضہ مافیا کا محنت کش کے گھر پر دھاوا،
कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से 2 अफराद शदीद जख्मी कर दिए। जख्मी होने वालों में सादिक और जमील नामी शख्स शामिल हैं। हाफिजाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हाफिजाबाद में दरिया चनाब के किनारे देहातों की जरखेज जमीन दरियाबर्द होने लगी। अहले इलाका का कहना है कि ये इलाके पहले ही से शदीद जमीनी कटाव का शिकार थे। हालिया सैलाबी पानी ने जमीनी कटाव के इस अमल को मजीद तेज कर दिया। मुख्तलिफ हुकूमती अदवार में इस जमीनी कटाव के रोकथाम के लिए बुलंद बाला वादे तो किए गए मगर वफा न हो सके। दरिया के किनारे कीमती ज़रई ज़मीन को तबाह होने से बचाने के लिए इलाका मकीनों ने हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में ज़राअत पर मुख्तस किए गई रकम में से इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। अब आपको बताएं कि सेहवन शरीफ में पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई है। अस्पताल के बाहर मोटरसाइकिल चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिमान में अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी निकला। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन चांडियों की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में एसएचओ जाहिद हुसैन झतियाल की शानदार कार्रवाई। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में मोटर बाइक चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड निकला। सेवन शरीफ सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में कुछ टाइम पहले मुलाजिम खान टालपुर का रक्षा चोरी हो गया था, वो भी अब तक नहीं मिला। और जो आने वाले पेशेंट है उनकी मोबाइल फोन और पर्स भी यहाँ पर निकल रहे हैं। जी मजीद आपको बताते चले कि हुसैन बख्श अलवी की सेवन शरीफ में घर के सामने से एक बाइक चोरी हो गई। जो चोर का हुलिया है वो सेम टू सेम सीसीटीवी कैमरा की मदद से मिलता जुलता है। दूसरी जानिब तरिंडा मोहम्मद पनाह में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर की जानिब से क्लीन ग्रीन और रोशन लियाकतपुर मुहिम का दायरा कार वसी कर दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन और रोशन लियाकतपुर मुहिम के तहत खान बेला की सफाई सुथराई और तज़यीन और आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया। इस मुहिम के पहले मरहले में खान बेला शहर की सफाई सुथराई और नकासियात को यकीनी बनाया जाएगा और दूसरे मरहले में खान बेला शहर में तमाम किस्म की गैर कानूनी इंक्रोचमेंट्स को खत्म कराया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने फवारा चौक खान बेला का दौरा किया और फवारे की फौरी बहाली का हुक्म दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट अमला तनदही से काम करे, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर जनूबी वजीरिस्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। सियाहों को लूटने वाला गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से लूटा हुआ माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। नामालूम और मुसल्लह नकाबपोशों ने असलहा की नोक पर सियाहत की गरज से आए हुए मेहमानों से झेल अशिया ज़बरदस्ती छीन ली। 5 अदद मोबाइल फ़ोन्स, 66,000 रुपये नकद रकम, सर्विस कार्ड, ATM कार्ड और शनाख्ती कार्ड वगैरह। और जनाब RPO डेरा जनाब अब्दुल गफूर खान अफरीदी साहब हिदायत की रोशनी में फौरी तौर पर नामालूम मुलजिमान को ट्रेस करने और उनको गिरफ्तार करके माल मुकदमा बरामद करने के लिए DSP सर्कल लद्दा शिरुल्ला खान, SHO नज़ीरुल्लाह, इंचार्ज तफ्तीश मंजूर खान और इंचार्ज कंप्लेंट सेल हबीबुल्लाह पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील दिया गया, जिन्होंने मेरी निगरानी में बराह रास्त बिन्यामीन, शाहिद रहमान और सिफतुल्लाह साकिनान मैदान लद्दा को ट्रेस करके बेहतरीन हिकमत अमली से गिरफ्तार किया। रिपोर्ट आपने जानी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर का तफसीली दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, शोबों और एमरजेंसी का मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी चेक की और मरीजों के इलाज, मुआलजे और निगहदाश्त के अमूर का तफसीली जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई के अमूर का भी खसूसियत से मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से भी सहूलियात और निगहदाश्त से मुतल्लिक इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाने और इलाज मुआलजे की मयारी सर्विसेज की भी हिदायत की।
नौल प्लॉट थाना रावी की हदूद में ताजिर को अगवा कर लिया गया। काठियावाला खूह पर दुकानदार मुश्ताक चौधरी नामी शख्स को पुलिस वर्दी में मलबूस किया गया था। मुतल्लिका थाना रावी पुलिस के लाइल्मी के इजहार पर लवाहिकीन ने दरखास्त दायर कर दी। अगवाकारों की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में ताजिर को अगवा करके सफेद गाड़ी में बिठाते देखा जा सकता है। मुतासरा खानदान ने मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके मख्फी को फौरी बाजियाब का मुतालबा कर दिया। लाहौर के अलहमरा हाल में महकमा पुलिस पर बनाई गई फिल्म मुहाफिज की पजीराई पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखने वाले अफसरान समेत टिकटॉकर स्टार ने कसीर तादाद में शिरकत की और महकमा पुलिस पर बनाई गई फिल्म मुहाफिज दिखाई गई। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर के हमरा टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है जन्नत मिर्जा का। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलहमरा हाल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर टिकटॉक स्टार जो है वो जन्नत मिर्ज़ा भी मौजूद हैं। उनकी जानिब चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आज की जो फिल्म थी मुहाफिज उसके हवाले से क्या कहेंगी। जन्नत मिर्ज़ा, आज की जो फिल्म मुहाफिज थी वो भी आपने देखी और बाकायदा तौर पर आपके अंदर भी जो है वो एक पुलिस ऑफिसर का खून है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि जिस तरह से पंजाब पुलिस काम कर रही है, अपना किरदार अदा कर रही है, आज की फिल्म के हवाले से देख कर क्या पापा याद आए? मैं बीच में 2 जगह इमोशनल हुई थी प्रॉपर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर का एक सीन चल रहा है कि हमारे घर पे कोई इशू बना हुआ हो और पापा को कॉल आई है और वो चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। और जैसे हमने इसमें देखा कि उनकी वाइफ जो है वो छोड़ के चली जाती है। मुझे गलत लगा ये चीज़ कि आपको एक पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है उसको समझना चाहिए। इसके अलावा ये शायद मैंने फिल्म में देखा है, लेकिन रियलिटी में भी हर जगह हर पुलिस वाला जो है वो यही अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और अगर आप देखें हमारे जो वार्डन्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इतनी धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो हम सबको मिलकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको शायद नहीं पता, आप लोग जो अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया पे कुछ गलत इमेज पुलिस का दिखाया जाता है, लेकिन आप उसको साइड पर रखिए। ये अच्छे इमेज जो हम लोग देखते हैं, जो वार्डन्स को आप देखते हैं आपके सामने, नज़रों के सामने, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की फिल्म के हवाले से आपने ये भी देखा कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिलने के लिए जब निकलता है तो पीछे से फिर एक 15 की कॉल मौसूल हो जाती है और वही सीन जो आपके पापा वाला है। अमूमन देखने में आया कि जन्नत मिर्ज़ा को भूख लगी है और पापा घर आए हैं तो उसी वक्त जो है वो बाहर से कॉल आ गई है, जन्नत मिर्ज़ा भूखी की भूखी रह गई, पापा फिर यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पर चले गए। हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में लोग हैं उनकी मदद करना पापा का फ़र्ज़ है। तो हम भूखे रह लेंगे, हमारा क्या है, लेकिन जो बाकी लोग जो मुसीबत में, उनकी हेल्प उन्हें करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर जन्नत मिर्ज़ा मौजूद थी जो टिकटॉक स्टार थी। उनका कहना था कि हम भूखे रह लेंगे, लेकिन जो अवाम है उनको जो है वो पूरा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और बाकायदा तौर पर जो लाहौर की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं वो भी जो है वो शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत से, इखलाक से पेश आएँ। और गुफ्तगू आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर में मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि विफाक की तर्ज पर हमारी तनख्वाहों में भी 35% इजाफा किया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी, आज हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर। यहाँ पर पंजाब से आए हुए सरकारी मुलाजमीन ने एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एहतजाज शुरू कर दिया है और उनका ये कहना है कि हमारा ये एहतजाज अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो आज ही हमारा एहतजाज धरने में तब्दील हो सकता है। देखिए, जब भी जैसे ही पंजाब हुकूमत ने अपना बजट अनाउंस किया तो उन्होंने इसके साथ 30% हिसाब से पंजाब के मुलाजमीन जो थे उनकी सैलरीज में इजाफा तो किया, लेकिन साथ ही ये भी एक शेक लगा दी कि जो इजाफा है उनकी जो रनिंग बेसिक पर नहीं है बल्कि उनके स्केल बेसिक पर इजाफा किया जाएगा। इसके बारे में तमाम पंजाब के मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज है, उनसे बात करेंगे। जी, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ये सभी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। मुतालबा हमारा सिर्फ यही है कि लीव इन कैशमेंट को बहाल किया जाए
और साथ जो हमारा बजटरी इजाफा हुआ है, जो वफाक लेवल पे हुआ है 35% जो हुआ रनिंग बेसिस पे हुआ है, और जो पेंशनर है उनके लिए 17.5% जो इजाफा हुआ है। लेकिन पंजाब ने जब ये बजट पेश किया है तो यहाँ पे आके बिल्कुल ही इन मुलाजमिन के ऊपर इंतहाई जुल्म कर दिया है। वो ये कर दिया है कि इनको ये पहले नंबर पे तो बताया ही नहीं गया कि ये रनिंग बेसिस पे दे रहे हैं या इनिशियल बेसिस पे दे रहे हैं। अब यहाँ पता चला, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है तो पता चला है कि ये जो 2022 में जो इनिशियल बेसिस किसी भी स्केल की तनख्वाह बढ़ती है उसके ऊपर हम लगाएंगे 30%, और जो पेंशनर हैं उनकी 5% जो है वो पेंशन में दावा करेंगे। तो ये सरासर हमारे ऊपर ज्यादती है, और ये ज्यादती जब तक ये ज्यादती हमारे ऊपर करते रहेंगे हम एहतजाज करते रहेंगे। लिहाजा हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि इसको वफाक के मुताबिक हमारी तनख्वाह में और पेंशन में और लीव इनकैशमेंट में इजाफा करके इन लोगों के जायज़ हक दिए जाए। जी, जहाँ तक सैलरी इंक्रीज का ताल्लुक है वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि वफाक के तर्ज पर पंजाब को भी वही कुछ मिलना चाहिए जो वफाक ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है वो लीव एंड कैशमेंट और ग्रेजुएटी की शरह को कम करके किया है, जिसमें मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को उन्होंने जिंदा दरगोर कर दिया है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि तो 1/6 को लीव एंड कैशमेंट का उन्होंने नोटिफिकेशन किया था वो फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए ताकि मुलाजमीन के अंदर बढ़ती बेचैनी फौरी तौर पर ख़त्म हो, और इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफा वफाक की तर्ज पर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुलाजिम का कहना है कि हमारा जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है वो हमारी रनिंग बेसिक के ऊपर इजाफा किया जाए, और हमारी इनकैशमेंट जो लीव जिनको रिटायरमेंट के ऊपर दी जाती है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ समारोह में मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से इज्तिमाई रैली निकाली गई और ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। रैली नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। रैली में उलमा कराम और मजहबी तंजीमों के अहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर स्वीडन की हुकूमत और कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलऊन के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कुरान पाक की बेतुकीरी पर शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन के सिफारतकार को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए, जबकि पाकिस्तान में स्वीडन की मसनूआत की फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। इस मौका पर खलील अहमद, हाजी मंजूर अहमद और दीगर ने भी खिताब किया। खबर शामिल करें हैदराबाद से, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद समेत सिंध भर में स्वीडन की जाने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की गई। दुनिया भर के मुसलमान मालिक स्वीडन के एशिया का बायकाट करें। कुरान करीम से पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, इसकी बेहुरमती करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हैदराबाद की जानिब से गाड़ी खाता से प्रेस क्लब तक एक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुहब्बे इस्लाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें तलबा, उस्ताद, ताजिर, वकला, डॉक्टर्स, उलमाए दीन और उलमाए किराम के अलावा मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दौरान रैली शुरका किताबुल्लाह की हुर्मती पर निहायती पुरजोश नजर आए। हाथों में पेनाफ्लेक्स और सीने से कुरान करीम लगाया, जहां पर रैली एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। इस मौके पर मुजाहिरीन से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम मुसलमानों की रेड लाइन है। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी को बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकराम आदिल ने कहा कि हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और रोकने के लिए इक़दाम करे, लेकिन अगर कुरान पाक को नजर आतिश या किसी किस्म की बेहुरमती की नापाक हरकत की गई तो इस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम आसमानी किताबों का एहतराम करते हैं, कुरान करीम के बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुरान करीम हमारे सीनों में महफूज है। तो वहीं दूसरी जानिब स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जलालपुर भटिया में भी एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ दीनी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गई। एक रैली में कुरान पाक की सरबुलंदी के लिए तलावत कुरान पाक की गई, जबकि सड़क पर स्वीडन हुकूमत के झंडे को पांव तले रौंदा भी गया और कुफ्र आलम को ये पैगाम दिया गया कि कुरान पाक एक मुकद्दस किताब है जो हमेशा सरबुलंद ही रहेगी। उलमाए किराम ने खिताब करते हुए कहा कि हर आलम कुफर को खबरदार करते हैं कि कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है।
स्वीडन में इसकी बेहुरमती करके हमारे दिलों को जख्मी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नारंग मंडी में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खाना पकाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए कमर गुलाटी की ये रिपोर्ट। नारमंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने सार्फिन को डला दिया। पूरा दिन और रात गैर तक सार्फिन सुई गैस के इंतजार में चूल्हों के आगे बैठे रहते हैं। यहाँ सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर ली है। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा। यहाँ कई गलियों में सुई गैस के लीकेज का मसला भी बना हुआ है। वहाँ कई रोज से मुकम्मल गैस की सप्लाई बंद है। मजीद जानते हैं शहर हुक्मरान और हज़्ब मुखालिफ आपस में की लड़ाइयाँ बंद करके अवाम को जो उसकी हक बनता है, उसकी जो सहूलियात मिलनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो फराहम करनी चाहिए। ख़ास तौर पर नारंग मंडी के अंदर सुई गैस का बिल्कुल प्रेशर थोड़ा आ रहा है, कभी नहीं आता, कभी बंद हो जाती है। लोग खाना पकाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मजबूर हैं। बच्चे अपने स्कूलों और कॉलेजों में भूखे जा रहे हैं, नाश्ता नहीं बनता। मज़दूर तबका भी नाश्ते के बगैर अपनी मजदूरी पे जा रहा है। बाकी लोग जो अपने कारोबारी ज़िंदगी पे जाना चाहते हैं, सुबह नाश्ता नहीं मिलता, तैयारी नहीं होती, सुई गैस नहीं आती। और इसी तरह बाकी खानों के वक्त भी सुई गैस ना होने के बराबर है। हम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि नारंग मंडी के अंदर सुई गैस फराहम की जाए, और अगर फराहम करते हैं तो उसका पूरा प्रेशर, उसको पूरी मिकदार के अंदर आवाम को सुई गैस फराहम की जाए, ताकि लोगों का बर वक्त खाना तैयार हो और लोग अपने कारोबारी ज़िंदगी कुछ खाकर अपना कारोबारी ज़िंदगी शुरू करें। बच्चे स्कूलों में जाएं, जब वापस आएँ तो उनको भी फिर ताज़ा खाना मिलना चाहिए। हम एक दफ़ा हुक्मरानों से फिर अपील करते हैं कि ख़ास तौर पर नारंग मंडी के अंदर सुई गैस फराहम की जाए। रिपोर्ट आपने जानी। और अब आपको बताएं कि शेखपुरा में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद बेग की इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के लिए मजम्मती एहतजाज। मोहम्मद फरूक सादक एडवोकेट हाई कोर्ट, हाफज महमूद सादक, हाफज गुलाम फरीद, आतफ किसाना, मलक अल्लादिता अवान, आदल बशीर एडवोकेट और डॉक्टर नईम यूसुफ की क़यादत में हुरमत कुरान रैली निकाली गई। मज़ाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और कुरान पाक उठा रखे थे। रैली सरगोदा रोड नबीपुरा से शुरू होकर शरीफ कॉलोनी और ऑफिसर कॉलोनी से होते हुए ज़राई फार्म चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा रैली ने कहा कि आजादी इज़हार राय के नाम पर 2 अरब मुसलमानों के दिलों पर वार किया गया। शुरा रैली ने नाराबाजी करते हुए कहा कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुर्मत कुरान की हिफाजत हर मुसलमान का दीनी और मिली फरीजा है। हुर्मत कुरान के सिलसिले में हम अपने आबादी के लिहाज से निकले हैं, अपने तौर पे निकले हैं। हम मोहल्ला नबीपुरा, मोहल्ला जुगियाँ, शरीफ कॉलोनी और मिठिया का डेरा, ऑफिसर कॉलोनी, हम सारे मिल के ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो दुनिया भर के इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC का इजलास बुलाकर मुतफिका तौर पर स्वीडन जैसे मुल्क से हर तरह का बाइकाट करने के लिए कलमा हक बुलंद करे और हंगामी तौर पर 57 इस्लामी। रिपोर्ट आप जान चुके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डहरकी में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ JUI के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए JUI के रहनुमाओं मौलाना असद महर, मौलवी मोहम्मद शरीफ शेख, उस्ताद अब्दुल कदीर कांचू और दीगर ने कहा कि स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन से सफारती ताल्लुकात को खत्म करे और स्वीडिश सफीर को फौरी मुल्क बदल किया जाए। उनका मजीद कहना था कि कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मत मुस्लिमा को अपना किरदार अदा करना होगा। रुख करें बहावलपुर का, जहां पर कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई। रैली सराय की चौक से होती हुई खत्म नबूवत चौक पर इख्तिताम पजीर हुई।
रैली में तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, ताजरान, तलबा और दीगर शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें स्वीडन मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। शुरका ने एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया कि स्वीडन में होने वाले नापाक फेल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर आवाज बुलंद की जाए और स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करते हुए स्वीडिश सफीर को मुल्क से निकाला जाए। समाजी, सूफियानी और रूहानी जमात अंजुमन गुलामाने कलंदर वेलफेयर के लॉयर और मेडिकल शोबे की जानिब से 21वीं महफिल कसरत दरूद शरीफ मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं कमरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। ये मतलब रोजमर्रा में तव्हांजी के भी सपोर्ट थींदी, तव्हांजी तॾहिं हथ पोइते थींदो तॾहिं तव्हां सुस्त थींदा, पोइ थोरो हथ पोइते थींदो। ज़रूर को शागिर्द स्टूडेंट क्लास में कनमाट ज़रूर थींदी, पर वरी भी वालिद हूंदो आहे, मोहब्बत हूंदी आहे, वरी भी जी बिल्कुल, जिसमें करोड़े दुरूद शरीफ और खत्मुल कुरान की इज्तिमाई दुआ मांगी गई। दुआ अंजुमन गुलामाने कलंदर वेलफेयर के सरपरस्त आला साईं सैयद गुलाम अहमद शाह कलंदरी ने मांगी, जिसमें 7 दादू जामशोर और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज दरगाह लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह बाबा साईं अहमद अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह पे दुआ मांगकर तलावत कलाम पाक से किया गया। महफिल में नात खानी भी की गई। आए हुए मेहमानों और साल के 12 महीने दुरूद शरीफ का काम करने वाले वर्कर्स में साईं सैयद गुलाम अहमद शाह कलंदरी के लिखे हुए किताब इनामात की तौर पर तकसीम किए गए। उस मौके पर खिताब करते हुए साईं सैयद गुलाम अहमद शाह कलंदरी ने कहा कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अदब और इखलाक बड़ी अहमियत रखता है। बगैर अदब और इखलाक की तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधूरी है, जिसके बगैर इंसान खाली है। अंजुमन गुलामाने कलंदर वेलफेयर के पैगाम में भी अदब इखलाक अहम नुक्ते हैं। इस मौके पर अंजुमन गुलामाने कलंदर वेलफेयर से वाबस्ता इंचार्ज और दीगर शोबाजात के इंचार्ज भी मौजूद थे, जबकि लियाकत सोलंकी, खान मोहम्मद अबड़ो, शेर दिल बबर, मोर अबड़ो, सदर अबड़ो, हाफिज अली नवाज सारियो, यासीन जमाली, हमीद कुंबर, मुर्तजा पर्यो, महबूब पर्यो, कासिम पर्यो, मोहम्मद इस्माइल सोलंकी, अली अकबर हिंगोरो, मेहर सोलंकी, अब्दार चांडियो, मोहम्मद कासिम मला, शबीर अबड़ो, फरीद अहमद सोलंकी, मुमताज अली हसन लाशारी, फुरकान सोलंकी, मीर गाजू खान मला, डॉक्टर मुमताज कुरैशी, डॉक्टर अली हसन कमरानी, डॉक्टर फयाज नायू, फरहान भट्टी, सकलेन पंवर, मुमताज जो ने शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया। जबकि रिपोर्ट आप जान चुके और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।